mostly university they raised, and I think over here thrice it has occurred in different universities. So the next question we are going to solve over here, the next question is related to intellectualism. So what do you find, to what extent George Eliot as an intellectual novelist? So you know when a person is intellectual, it's very hard to understand. You can't understand a person who is very intellectual, complex, and the person who is intellectual enough, it's hard to understand, hard to grab his language, his way of providing dictions, expressions, idea, plot, themes. It's a bit hard to understand and grab his idea. So over here we are going to study George Eliot, whose exact name was Mary Ann Evans. So Mary Ann Evans, she had spent scandalous life. I told you earlier, she was born in England. She loved her mother and fathers and brother as well, but they mostly different relations. She got a deaf ear from different relations. They did not respect as she wanted respect by their side. Brother Essex and mother scolding all the times, and father to some extent loved, but he left her soon. So as he left her, she was alone, and she also saying we have studied. She was saying when he died that what I should do after you, father. You was the only source and inspiration for me. So it means that she loved her father so much, he had some sympathy for her. So what happened after the death of her father, she was feeling a loneliness, and then she joined some people. They were scholar enough, and she joined their company. After joining their company, she started studying literature, ancient literature like Aristotle, Plato, and like that, ancient Greeks literature. And after studying their literature, pagan literature, what happened? She also probing into the Christianity. She made research in Christian, and after that she realized that Christian religion has been transformed and changed to great extent. There are a lot of changes, and that is not an exact religion. That is not exact religion that was in the time of the Christ. So that is why she discarded, and she thinks that only thing existed over here in this cosmos or universe is the destiny that is in your hand. Like character is your destiny, your activity is your destiny. So whatever you do, or whatever activity you do, or whatever you have character, positive, negative, frivolous, non-serious, that will ultimately give you result. If you have wrong character, you will be ultimately suffer, or you will be doomed. If you've got a good character, you will prosper. You will be prosper, and you will get progress edge. So it means that it all depends upon your character, whether you are going to get good result, bad result, destruction, doom. Though she spent scandalous life, but she did not favor this life because her conscience pricks her, and she usually passes and make pass her characters, protagonists, mostly in various novels, under different trials and sophistications, and ultimately the characters dying, because whatever she thinks that if you've got a good character, you will be getting good result. If your characters are bad, you will be ultimately getting bad result. So that's what the philosophy and psychology of the writer. He writer is psychology, and she was a theist. She was agnostic, because after studying and making research on Christianity, she turned out as a agnostic or a theist. She left and discarded religion, and rather she took the religion as fictions and fairy tales like activities. So let's discuss certain points. First of all, the point is end of the novel, Mill on the Floss. और एक बात याद रखिएगा कि
जॉर्ज इलियट ने अपनी लाइफ जो है एक स्कैंडलस लाइफ गुजारी है और उसके करैक्टर भी वैसे ही होंगे, चाहे आप हैटी को देख लें या मैगी को देख लें। स्कैंडलस लाइफ होगी। स्कैंडलस लाइफ के अंदर आप देखेंगे कि सोशल जो है, सोसाइटी जो है वो भी उसकी सफरिंग में एडिशन कर रही है, उसमें इजाफा कर रही है, लेकिन ओवरऑल सफरिंग सोसाइटी की वजह से अक्कर नहीं होती जॉर्ज इलियट के प्रोटैगनिस्ट के ऊपर, बल्कि उसकी इनर कॉन्फ्लिक्शन है, जो करैक्टर का एनालिसिस है, माइंड का एनालिसिस है, जो माइंड का जो अपना एनालिसिस है, अपनी जो ड्यूटी और पैशन के दरमियान, इम्पल्स और पैशन के दरमियान, जो ड्यूटी और इम्पल्स के दरमियान, इम्पल्स और उसके बाद मॉरल के दरमियान जो वो टॉर्न रहती है, उसके दरमियान रहती है, वो उसकी कॉन्फ्लिक्ट का सबब बनती है, उसकी डेस्टिनी, उसकी एंड जो है उसके एंड का सबब बनती है। अब देखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए, क्रिटिक ओपिनियन रिगार्डिंग द एंड ऑफ द नॉवल। लिखें कि क्रिटिक्स क्या ओपिनियन देते हैं रिगार्डिंग द एंड ऑफ द नॉवल। हम इसके बारे में, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगी नॉवलिस्ट के बारे में, और फिर उसके बाद बताएंगे कि क्रिटिक्स जो हैं वो क्या कहते हैं, कि क्या इसका जो एंड है वो बड़ा जस्टिफाइबल है, एंड इट जस्टिफाइज द टॉपिक, द मिल ऑन द फ्लॉस, क्या वो वाकई ही जस्टिफाइबल है, क्या उससे ऐसे करना चाहिए था, क्या इससे बेहतर भी कोई हो सकता था। तो क्रिटिक्स जो है वो अपना बताएंगे, उनकी एक एक लाइन की कोटेशन है वो आप याद करेंगे, बल्कि लिख लें, अभी मैं लिखाता हूँ। उसके बाद द मिल ऑन द फ्लॉस दूसरा पॉइंट है। द मिल ऑन द फ्लॉस, ये साथ साथ लिखते जाएं, आपको याद रहेंगे। द मिल ऑन द फ्लॉस, अ नॉवल रिटन इन रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है, रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है दैट समथिंग रिलेटेड टू द रिमेम्बरेंस ऑफ समथिंग, किसी की याददाश्त या पिछली कोई याद या पिछली लाइफ, माजी की लाइफ को याद करना, उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्ट। तो ये नावल बेसिकली 1830 राउंड अबाउट की लाइफ जो है ना वो बताता है। अब जो लाइफ है, जो उसकी जो लाइफ है वो 1850 की है, यानी वो 1850 से उसने जो लाइफ दिखाई वो पिछली सेटिंग बताई है, पिछला इरा बताया है, पिछले कुछ साल बताए हैं जो 20 साल पहले के साल हैं, अब वो 1850 में है। तो 1830 का जो उसने सेटिंग दिखाई है उसको प्रेजेंट लाइफ के साथ रिलेट किया। 20 साल पहले सिचुएशन कुछ और थी, लोग क्या थे, मजहबी थे, लोग क्या थे, प्योर थे, लोग नेचुरल थे, लोग बहुत ज्यादा गुड थे, अच्छे थे। लेकिन आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है, लोग चेंज हो गए हैं, लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, लोग एंटरप्रेन्योरर हो गए हैं। एंटरप्रेन्योरर का मतलब लिख लें, एंटरप्रेन्योरर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स बिजनेस, यानी लोगों ने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर लिए हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, वो मटेरियल हो गए हैं, वो ज्यादा क्या हो गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा ली हैं। अब लोग क्या किसी दूसरे से भी छीन के अपनी तरफ रोजी ले आते हैं, किसी की भी छीन के, उनको कोई इस पे कोई उनको फील नहीं होता, मीन से ना तो उनका कॉन्शियस उनको प्रिक करता है, ना उनका जमीर उनको जोड़ता है। अब लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, मादियत को लाइक करते हैं और स्पिरिचुअल नहीं रहे। पहले प्योर थे, पहले नेचुरल थे, 20 साल पहले हालात और थे, अब और हो गए हैं। ये लाइफ जो है, जो आपको नॉवलिस्ट ने दिखाई है, जो जॉर्ज इलियट दिखा रही है, वो कुछ और लोग अब आ गए हैं। जैसे मिस्टर विकम जो है वो एंटरप्रेन्योर को जार करता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को जार करता है, वो मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड रखता है, जबकि मिस्टर टूलीवर जो है वो स्टेबर्न है, नेचुरल है, और उसके बाद क्या, ऑनेस्ट है, अच्छा इंसान है, टू द पॉइंट है और अपराइट है, ऑनेस्ट है। पर अब ऐसे लोग नहीं रहे, ठीक है। अब दो लाइफ इसके अंदर दिखाई गई है। आपको जो डॉडसन सिस्टर हैं वो भी सुपरफिशियल नजर आएंगी, आपको वो एरिस्टोक्रेटिक एटीट्यूड उनके अंदर नजर आएगा, स्टीफन गेस्ट के जो फादर हैं उनके अंदर नजर आएगा, आपको मिस्टर डीन के अंदर नजर आएगा, जो डिफरेंट हो। मिस्टर स्टीलिंग जो है वो पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, उसको एजुकेशन के साथ प्ले कर रहा है। तो इस तरह बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो मर्ज हो चुके हैं, बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, यानी 20 साल के अंदर ये आपको चेंजिंग जो है वो जॉर्ज इलियट ने बताई है। आगे देखिएगा, 1820 की लाइफ जो है वो मिस्टर टूलीवर उसको जार करते हैं, सिंप्लिसिटी को जार करता है, स्पिरिचुअलिटी को जार करता है, प्योरिटी को जार करता है, विच हैज लॉस्ट इन द 20 years। अब वो खो चुकी है। और हमने मिस्टर विकम को देखा, मिस्टर विकम जो है वो लॉयर हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड
एक एरा से ताल्लुक़ रखते हैं। अर्बनाइजेशन हो चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, और वो एंटरप्रेन्योर जो लाइफ है उसको ज़ाहिर करता है, वो मटीरियलिस्टिक इंसान है। तो इसमें दोनों लाइफ, दोनों एजेस की लाइफ, एक 1820 1830 की लाइफ दिखाई गई है और 1850 की। ठीक है जी, ये है दूसरा पॉइंट इसका। उसके बाद देखिएगा, द लैक ऑफ हार्मोनी लीड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। लिख लें, लैक ऑफ हार्मोनी लीड्स टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। अब लेक ऑफ हार्मोनी लीड्स टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन क्या है? व्हाट इज दिस? हमारी आर्टिस्ट, हमारी नॉवेलिस्ट हमें यह बताना चाह रही है कि अगर आपकी लाइफ में हार्मोनी नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, आप लाइफ को कलेक्ट नहीं करते, इंटीग्रेट नहीं कर रहे, तो वो अल्टीमेटली लीड करेगी डिस्ट्रक्शन की तरफ। हाउ? मैगी हर चीज का इंपल्सिव डिसीजन लेती है। वेरी बिगिनिंग, पहला डिसीजन उसने लूसी को धक्का देना, डिच में गिराना, फिर जिप्सीज के पास चला जाए। ठीक है। दूसरा उसने मिसहैप क्या किया, उसके साथ क्या हुआ कि वो कैंची से बाल काटती है, वो भी क्या, हार्मोनी नहीं है, देयर इज नो हार्मोनी, वॉट एवर शी थिंक्स शी स्टार्टेड डूइंग। लेकिन जमाना चेंज हो चुका है। अब ऐसे लोगों की जो डीप थिंकर होते हैं, सिंपैथी ज्यादा रखते हैं, किसी के साथ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह का कैरेक्टर है मैगी। मैगी नेचुरल है, डीप थिंकर है, डीप सिंपैथी रखती है, डीप लव रखती है, हर चीज को शदीद करती है। लेकिन आज का जमाना इन चीजों को लाइक नहीं करता, क्योंकि बहुत चेंजेस आ गए हैं, लोग मटेरियलिस्टिक हो गए। जैसे मिस्टर डीन के पास जब वो जाता है टॉम, तो वो से कहता है कि मैं सिर्फ अपने मौकफ को ही देखता हूँ, मैं अपने इंडिविजुअल बेनिफिट को देखता हूँ। तो उसके ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट देता है मिस्टर डीन के, आई रिस्पेक्ट सच अ पीपल, दे थिंक फॉर देमसेल्फ। मैं ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट और हेल्प करता हूं जो एटलीस्ट अपने बेनिफिट के लिए सोचते हैं। इट मीन द कैरेक्टर्स एंड द वे ऑफ थिंकिंग, वैल्यू, ट्रेडिशन, कन्वेंशन, ऑल हैव changed now. The people are no more like religious thinker or purity, like having purity, or they are promoting something like that. But everything has changed now. People have changed to great extent. They are entrepreneur now. They are entrepreneur now. They are business minded. They are industrialist. They are capitalist. And they are thinking and finding their own business. तो अपना अपना बिजनेस का सोचते हैं, किसी का नहीं सोचते। उसके बाद मैगी की जो सफरिंग है वो किसकी वजह से है कि उसकी लाइफ के अंदर हार्मोनी नहीं है। कैरेक्टर्स जो हैं, जो भी कैरेक्टर अपने अंदर हार्मोनी नहीं लाता तो अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन में चला जाता है। हमने मिस्टर टुलिवर को देखा कि वो हर किसी के साथ लड़ता था, लड़ाई उसको किसकी तरफ लेगी, डिस्ट्रक्शन की तरफ। छोटी सी पेटी इशू के ऊपर, मिस्टर बेकम के ऊपर केस, वो केस अल्टीमेटली लड़ता रहा, हार गया। मैगी छोटी छोटी इंपल्सिव डिसीजन लेते लेते कहाँ चली गई, अलॉटमेंट में चली गई, अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन की तरफ चली गई। और इस तरह हार्मोनी नहीं लाएंगे तो आपका कैरेक्टर सफर करेगा। ठीक है, चाहे वो आप हों या कोई भी हो, अगर हार्मोनी नहीं लाएगा, इंटीग्रेशन नहीं लाएगा, प्लान नहीं डिसीजन लेगा, इंपल्सिव लेता जाएगा, जो मन में आया वो करता जाएगा, तो दैट विल अल्टीमेटली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। फोर्थ पॉइंट है, नो वन अदर, कहता है नो वन अदर मेथड ऑफ मैगीज डेथ वुड हैव बीन कन्विंसिंग। इसका मतलब है कि बहुत सारे सब्स्टिट्यूशनल एंड थे, लेकिन इसने ये ही राइटर ने चूज क्यों किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी राइटर जो है वो क्या करती है, जो जॉर्ज इलियट है ये सिर्फ नॉवेलिस्ट नहीं है, शी इज अ फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट एंड टीचर। शी टेक्स नावल, she makes novel as a hotbed of discussion. She discuss societal problem, सोसाइटी के प्रॉब्लम इसके थ्रू वो डिस्कस करती है और बताती है कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है। उसने बहुत सारे पहले तो कॉम्प्लेक्स रिलेशन इसके अंदर क्रिएट की, कैसे फिलिप मैगी का, फिलिप और लूसी, और उसके बाद विकम, स्टीफन, ये दोस्त हैं। लूसी और मैगी कजन है। ये देखें ना, ये सारे कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। अच्छा, उसके बाद मैगी और लूसी जो हैं वो एक ही शख्स से फिर प्यार करने लग जाती है। फिर मैगी फिलिप से भी प्यार करती है।
आप देखेंगे ओवरऑल बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन बना के और वो इसके थ्रू यूनिटी जाती है कि यूनिटी वो कहती है कि कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, इंट्रिकेसी की वजह से आता है। जितना इंट्रिकेट बनाएंगे आप अपने प्लॉट को, अपनी स्टोरी को, उतना ज्यादा यूनिटी लाएगी। तो वो इस तरह पहले तो वो रिलेशन का कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसके अंदर क्रिएट करती है अपने प्लॉट के अंदर। No other method of Maggie's death would have been convincing. इसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या सब्स्टिट्यूशन थे। लिखें, there was a chance that here Tom killed, here in this novel Tom could have killed Maggie because that was an honor killing and George Eliot did not support it. जॉर्ज एलियट इसको सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए नहीं किया ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग हो सकती थी कि मैगी ने धोखा दिया, खानदान को धोखा दिया, फिलिप के पास चलेगी, फिर वो लूसी को धोखा दिया, वो भी उनकी खानदान की है, ऑनर किलिंग हो सकती थी, बट शी नेवर डिड। एक तो ये नहीं किया। द अदर ऑप्शन वाज दैट लूसी, Stephen Guest and Maggie both went for boating and ultimately they could have drowned in the river and ultimately they could have died. वो मर सकते थे, वो गए थे, they had gone and they could have died in the river, but she did not create this. ये भी एक ना impulsive सा एक बन जाता, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती कंडीशन। एक तो ये नहीं किया, और उसके अलावा ये हो सकता था कि मैगी बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, उसकी स्टेट भी ऐसी थी और